Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you Coming of the British and the Revolt of 1857 of class 5 and the subject is SST. So previous class we did part 1 no, and today we will do part 2. Okay, and today's topic is just the continuation of the previous topic. So, under this we will deal with the discovery of a sea route to India, India Company, Battle of Plassey, exploitation of the Indians by the British, revolt against the British. So, previous class we did discovery of a sea route to India, East India Company and Battle of Plassey. And today we have to do exploitation of Indians by the British and revolt against the British. So before proceeding further, now let's do a little bit of revision. Okay. So last class we did discovery of a sea route, how sea route was discovered and who discovered this sea route to India, no? And who are the traders who came to India and in order to trade, and what kind of raw materials they used to trade, no? We did this last class. And how did the East India Company was set up in India, and after that only how did the East India Company started to gain control over the Indian subcontinent, and after that what were the causes of the Battle of Plassey and what were the reasons of the Battle of Plassey. We did all these things during the previous class, and today we will do a little bit of revision. So when we talk about the last class, we said that there was discovery of a sea route, and it was Vasco da Gama who discovered the sea route to India via Cape of Good Hope. And after that only Portuguese came to India in order to trade, and the first place where they traded was Calicut, and they traded mostly spices because at that time Calicut was very famous for the spices, no? And after that many Portuguese traders came to India via sea route which Vasco da Gama has discovered, and after that only Portuguese soon got monopoly over the India. And after the Industrial Revolution over the European countries, other European countries like Holland, France and Britain also became interested in India, and they also came to India in order to trade. No, we did this last class. And ये जो एंशिएंट टाइम में जो स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, पर्ल्स के लिए भी इंडिया बहुत फेमस थे, है ना? और पहले अरब्स आए थे और उसके बाद पोर्टुगीज़ आए थे और उसके बाद पोर्टुगीज़, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच आए थे. पर क्या हुआ, इन सब जो पोर्टुगीज़, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच आए थे वो ट्रेड में कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे से झगड़ने लगे, है ना? और जब और आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये जो हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन जो इंडिया में आए थे वो लोग भी सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे. और इस वक्त ही जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उन लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किए थे 1600 में, है ना? और वो भी क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेके ही ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे. उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन ऑफ इंग्लैंड थे. उस वक्त क्वीन ऑफ इंग्लैंड कौन था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. उसके ही परमिशन के द्वारा ही 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे. ये सब किए थे ना हमने क्लास में. और उसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी एम्परर जहांगीर से परमिशन लेके ट्रेड करने लगे और धीरे धीरे इन लोग का मोनोपोली बढ़ता ही गया, और इन लोग ने ब्रिटिश ने अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है वो बॉम्बे एंड मद्रास में बनाए थे. और क्या हुआ ये देखिए, जो फ्रेंच थे फ्रेंच भी आए थे ट्रेड करने के लिए, और जो मोनोपोली कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बैटल भी हुआ था, और जहाँ पर ब्रिटिश ने विक्ट्री, है ना, ब्रिटिश ने जीता था. अब फ्रेंच हार गए थे और उसके बाद ये धीरे धीरे कंट्रोल करते चले गए. और जब औरंगज़ेब का देहांत हो गया 1707 में, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो इंडिया ही बंगाल कंट्रोल करना चाहिए था, है ना? और इसीलिए जब ऐसा हुआ तो
उन लोग ने ब्रिटिशर्स ने विदाउट परमिशन बंगाल में फोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिया। और बंगाल में जब फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया उस वक्त क्या हुआ, सिराजुद्दौला जब नवाब बन गए उस वक्त ब्रिटिशर्स को सिराजुद्दौला ने बोला फोर्ट मत बनाना, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास वो जो टैक्स भी पे नहीं किया है इसलिए फोर्ट मत बनाना। जब ऐसा हुआ ब्रिटिशर्स ने ही सुना, फिर भी फोर्ट बनाते चले गए। और जब ऐसा हुआ उस वक्त सिराजुद्दौला ने अटैक किया और हाफ ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्लेड अवे फ्रॉम देयर एंड हाफ ऑफ द ब्रिटिशर्स वेर केप्ट एज प्रिजनर्स, ठीक है। So after that only in 1757 Britishers attacked Bengal, and that was the Battle of Plassey। एंड बैटल ऑफ प्लासी से ही बंगाल को ब्रिटिशर्स ने जो कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ये हुआ था। और उसके बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी अडॉप्ट किया ब्रिटिशर्स ने, है ना, वो जो कंट्रोल करने के लिए। और ऐसा हुआ बस। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे बैटल ऑफ बक्सर भी स्टार्ट होने लगे 1764, है ना। और जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर क्या है, ये इसमें भी ब्रिटिशर्स विक्टोरियस हुआ। सो ये जो बैटल ऑफ बक्सर है उससे ही बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फाइनली केम अंडर द ब्रिटिश रूल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी obtain the right to collect revenue from the state। ये किए थे हमने। और इसके बाद डिफरेंट पॉलिसीज़ भी अडॉप्ट किया ब्रिटिशर्स ने, है ना, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, जो इंडिया है इंडिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसा पॉलिसी भी अडॉप्ट किया ब्रिटिशर्स ने। और ये जो सब्सिडियरी अलायंस है, सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता है, एक जो राज्य होता है उसे अपना जो एक्सटर्नल कंफ्लिक्ट होता है, जो बाहर से अटैक करता है, उसके सिक्योरिटी के लिए ब्रिटिशर्स के आगे वो ट्रूप्स मिलाना पड़ेगा और ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेगा, प्रोटेक्ट करेगा जब भी फॉरेन अटैक होगा, है ना। इसके लिए ये जो ब्रिटिशर्स है उसके ट्रूप्स उस राज्य में भी बनाना चाहिए। तो ये हुआ सब्सिडियरी अलायंस। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, उस वक्त इफ़ जो राज्य के एक उत्तराधिकारी नहीं है तो जब वहाँ का राज्य का उस राज्य का राजा का जब देहांत हो जाएगा उसके बाद वो ब्रिटिशर्स सब लोग कंट्रोल कर देगा। तो ये रहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यही किया हमने लास्ट क्लास में। तो ये रहा धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्रिटिशर्स कैसे पहली बार इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, है ना, और धीरे धीरे अब कंट्रोल करते चले गए हैं इंडिया में, धीरे धीरे कंट्रोल करते। पहले तो सिर्फ एज अ ट्रेडर्स आए थे पर अब कंट्रोल करने लगे, बंगाल भी कंट्रोल कर लिया आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, है ना। अब ब्रिटिशर्स क्या करें, अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इसका मेन मोटिव तो इंडिया में जो भी खजाना है ना, जो भी ज्वेलरी एंड ऑल है वो सब ले जाके अपने देश में ले जाने का मेन मोटिव है ना ब्रिटिशर्स का। सो अब एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया है। सो टुडे we will start with the exploitation of the Indians by the British। तो आज हम एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियंस किसके द्वारा, ब्रिटिश द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन फार्मर्स हैड टू पे heavy taxes। Weavers were forced to sell the cloth at very low price। Indian cotton industry was also a victim of British greed। British did not allow Indians to start their own mills or factories। तो धीरे धीरे ये सब बैटल भी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया एंड बैटल ऑफ प्लासी, कंट्रोल करते चले गए ब्रिटिश। और एक बार जब ब्रिटिशर्स ने सब कंट्रोल कर दिया उसके बाद ये जो ब्रिटिशर्स ने अपना अनफेयर मीन्स है ना, अनफेयर मीन्स यानी कि अनुचित मोटिव स्टार्ट कर दिया। और उसका मेन मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का, रीच होना और ये जो इंडिया है उसे कंट्रोल करना। और ये मोटिव धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे और ये भी अनुचित यानी कि अनफेयर मीन्स के द्वारा, है ना। और ये जो ब्रिटिशर्स है वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने लगे, इंडियन फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करने लगे। और ये जो हमारे इंडियन फार्मर्स है
वो हेवी टैक्स यानी कि बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ता था इंडियन फार्मर्स को, ठीक है। और ये जो भी खेती करते थे है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत नुकसान होने लगे इंडियन फार्मर्स को। सो दे हैव टू पे दी हेवी टैक्सेस टू दी ब्रिटिशर्स। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये जो हमारे जो इंडियन फार्मर्स है ना, वो डे बाय डे बहुत गरीब होते चले गए, ठीक है। डे बाय डे दे बिकेम सो पुअर, बहुत गरीब होते चले गए। और इंडियन फार्मर्स के अलावा जब हम वीवर्स देखते हैं, वीवर्स वे ऑल्सो फोर्स टू सेल द क्लोथ एट अ वेरी लो प्राइसेस। यानी कि ये जो वीवर्स होते हैं ना, इन लोग ने जो भी अपना क्लोथ बनाए हैं ना, एट अ हाई रेट बनाते थे, पर सेल करते वक्त यानी कि जब ये सेल करना पड़ता था उस वक्त ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया एट अ लो प्राइस सेल करने के लिए। इसलिए इन लोग को भी दे वे फोर्स टू सेल एट अ वेरी लो प्राइस। यानी कि इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। क्योंकि अगर आप लोग एक सामान 50 रुपीज़ खर्चा होता है, जस्ट एग्जाम्पल, आप लोग को एक बुक बनाने के लिए, छोटा सा अच्छा सा डायरी बनाने के लिए आप लोग को 50 रुपये खर्च होता है। तो अगर वो 50 रुपये में खर्च होता है और अगर आप मार्केट में ले जाके वो 60 रुपीज़ या फिर 70 रुपीज़ पर आप लोग सेल करें तो आप लोग को प्रॉफिट होगा ना। पर अगर आप लोग ने उसी बुक मार्केट में ले जाके 30 या 40 रुपीज़ में सेल किया तो आप लोग को लॉस होगा, है ना। तो इसी तरह से ही वीवर्स को भी लॉस होने लगे, क्योंकि ये लोग जितना प्राइस से अपना वो क्लॉथ बनाते थे, है ना, और जैसे कि कम रेट में मार्केट जाके सेल करते थे, है ना, इसकी वजह से ये लॉस होने लगे, ठीक है। वीवर्स को बहुत लॉस होने लगे। और ये जो इंडिया का ये कॉटन इंडस्ट्री है ना, ये कॉटन इंडस्ट्री भी विक्टिम बन गया ब्रिटिश का ग्रेट। ये ब्रिटिश का जो लालच है ना, वो जो धनी बहुत रिच होने के, इसके लालच में इंडियन कॉटन इंडस्ट्री भी आ गई। ये भी इंडियन कॉटन इंडस्ट्री भी विक्टिम बन गए, ठीक है। और ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ कॉटन। और ये जो ब्रिटिश है ना, ये जो ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से आए थे, है ना, और ब्रिटेन में इतना ठंड मौसम होने के कारण से वहाँ पर कॉटन का खेती नहीं होता था, ठीक है। और कॉटन क्लॉथ तो बहुत अच्छा होता है ना, और उधर ब्रिटेन में तो कॉटन का खेती नहीं होता है। इसीलिए ये जो हमारे इंडिया में तो कॉटन तो बहुत होता है, इसीलिए ये जो ब्रिटिशर्स है वो कॉटन का खेती, बहुत ज़्यादा कॉटन का खेती करवाना स्टार्ट कर दिया फार्मर्स लोग को। और ये जो भी कॉटन होता है ये ले जाके ब्रिटेन में ले जाते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ऐसे करते थे। और ये जो कॉटन होता है, जो कॉटन का खेती करवाते थे इंडियन फार्मर्स से, है ना, और ये जो कॉटन होता था वो लो प्राइस से खरीदते थे ब्रिटिशर्स। और लो प्राइस खरीदने के बाद ये जो रॉ मटेरियल्स है उसे ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ पर कॉटन क्लॉथ्स बनाते थे, फाइन कॉटन क्लॉथ्स, है ना, और वो इंडिया में लेके बहुत एक्सपेंसिव दाम में सेल किए जाते थे। सो बिकॉज ऑफ दिस इंडियन कॉटन इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रेड। इसकी वजह से ही इंडियन कॉटन इंडस्ट्री भी विक्टिम बन गए ब्रिटिश ग्रेड का, ठीक है। ब्रिटिश का ये जो लालच है धनी बनने के लिए, है ना, बहुत अमीर बनने के लिए, इसका लालच का असर भी इंडियन कॉटन इंडस्ट्री में पड़ने लगा। और ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ऑल्सो डिड नॉट अलाउ इंडियन टू स्टार्ट देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज। और ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश भी इंडियंस को अपना खुद का मिल्स और फैक्ट्रीज भी नहीं बनाने दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ही बनाने दिया। और इतना पर एक्सप्लॉइट होते जा रहा था, है ना। यहाँ पर आप लोग देखो फार्मर्स भी एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे, वीवर्स भी एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे, और ये जो इंडियन कॉटन इंडस्ट्री है ये भी एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे। और धीरे धीरे जो इंडियंस को मिल्स एंड फैक्ट्रीज भी नहीं बनाना दे रहे थे, है ना, ब्रिटिशर्स। तो इतना पर एक्सप्लॉइट होने के बाद ये जो कॉमन पीपल है इंडिया के, वो डिससेटिस्फाइड होने लगे, ठीक है। डिससेटिस्फाई होने यानी कि असंतुष्ट होने लगे इंडियंस। और इसीलिए अब रिवोल्ट, धीरे धीरे रिवोल्ट यानी कि इस शोषण से बाहर निकल, जब बहुत शोषण होता है ना उस वक्त कोई भी उपाय तो होना चाहिए ना बाहर निकलने के लिए, क्योंकि
क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण के अंदर कोई भी नहीं रह सकते हैं, है ना, और इसीलिए अब रिवोल्ट जो अब हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स को, इस तरह के फीलिंग ये जो इंडियंस है उस लोग के इंडियंस के अंदर आने लगे। अब रिवोल्ट धीरे धीरे अब रिवोल्ट स्टार्ट होते जा रहा है, ठीक है। सो ये जो एक्सप्लोइट होता था इंडियंस में, आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे यहाँ पर शोषण किए जाते थे फार्मर्स को। देखिए यहाँ पर कितना शोषण किए जाते थे, कितना मजदूरी काम किया जाते थे, है ना, इतना बड़ा मजदूरी काम किए जाते थे, फिर भी पैसे कम देते थे, है ना। और जो भी उपजाऊ होते हैं खेती में, और जितना भी उपजाऊ होता है उससे भी ज़्यादा कर्ज देना पड़ता था। बहुत एक्सप्लॉइट करते थे ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स को। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, दिन भर काम करने के बाद भी ये जो इंडियन फार्मर्स है उन लोग को खाने के लिए सिर्फ कम पैसे ही मिलते थे, ठीक है, और कपड़े भी अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत एक्सप्लॉइट करते थे ना, इसलिए। तो और इसकी वजह से अब रिवोल्ट होना स्टार्ट कर दिया। सो अब हम देखेंगे रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। The revolt of 1857, according to the historian, is an important landmark in Indian history. Started by the Indian soldiers in the British Army. Reason for the revolt was the introduction of the Enfield rifles. यानी कि जब हम रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश के टॉपिक में बात करते हैं, है ना, ये जो बहुत एक्सप्लोइट होने के बाद ये जो पीपल के अंदर हमें रिवोल्ट, इसका विद्रोह करना चाहिए, इस तरह का फीलिंग इमर्ज होते चले गए थे, और इसकी वजह से ही रिवोल्ट स्टार्ट होने लगे। और ये पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, यानी कि पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। से जो भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज अडॉप्ट किया था उसमें से विद्रोह करने लगे। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये जो हिस्टोरियंस का कहना है कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 ये इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये किसने शुरू किया था? स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी, यानी कि इंडियन सोल्जर ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसका मेन रीजन है इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल, ठीक है, एनफील्ड राइफल है मेन रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्योंकि ये जो एनफील्ड राइफल्स होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका इमेज में, ये जो एनफील्ड राइफल्स है, क्योंकि ये जो एनफील्ड राइफल्स है ये जो बैटल में यूज किए जाते हैं, एंड rumors spread the cartridges of the rifles were greased with fat of cows and pigs, and covering of this had to be bitten off before the loading into the gun. This was against, the spelling is AGAINST, against the religion of both Hindu and Muslim soldiers. ये जो एनफील्ड राइफल्स है, ऐसा रूमर्स फैल गया था कि जो कार्ट्रिजेस है जो राइफल में डालना पड़ेगा बिफोर, है ना, उसे मुंह से निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही लोड करना पड़ेगा। पर ये जो राइफल्स है ना, कार्ट्रिजेस ऑफ राइफल्स में ग्रीस, और ये जो राइफल्स है कार्ट्रिजेस का, वो जो काउ एंड पिग्स है ना, उसके जो चर्बी होता है ना, उससे कवर अप किया जाता था। और जब मुंह से निकाला जाए, इस तरह से मुंह से निकाला जाए, उस वक्त ये जो फैट होता है ना काउज एंड पिग्स का, वो मुंह पे लग जाता था। जैसे कि ब्रिटिश आर्मी में हिंदूज एंड मुस्लिम्स भी है ना, और हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदूज जैसे कि काउ नहीं खाते हैं, और ये जो मुस्लिम्स है वो पिग नहीं खाते हैं। इस तरह से इन लोग का धर्म भ्रष्ट होते जा रहा है, इन लोग का मानना था, इसलिए तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है ना। और ये जो इंडियन सोल्जर्स है, दे ऑल रिफ्यूज टू यूज दिस राइफल्स एंड द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे थे, यहाँ पर देख सकते हैं होता था ग्रीस कार्ट्रिजेस है ना, और यहाँ पर ऐसा होता था, और ये मुंह से तोड़ना पड़ता था इस तरह से, और मुंह से तोड़कर यहाँ पर डाल के ही
फायर किए जा सकते थे। पर ये जो इसका टॉप कवरिंग है ये है ना, जब मुंह से निकाला जाए तो उस वक्त यहाँ पर काउ एंड पिग्स का फैट होते थे है ना। काउस एंड पिग का फैट होने की वजह से धर्म भ्रष्ट होते जा रहे थे, यही मानना था ब्रिटिशर्स का। क्योंकि जो भी ऐसे मांस नहीं खाते थे क्योंकि उसका रिलीजियस होता है ना, बुक पर लिखाया जाता है कि आप लोग के ऐसे मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसे धर्म के है ना। तो इसकी वजह से ही यहाँ पर भी बहुत बैटल शुरू होना स्टार्ट कर दिया। सो इट वॉज द सोल्जर एंड नाउ द रिवोल्ट ऑफ 1857 started in India, and the first place was revolt began in Meerut. मेरठ में स्टार्ट हुआ and soon spread to northern and central India. So ये जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट मेरठ में स्टार्ट हो गया है ना, और मेरठ में स्टार्ट होने के बाद नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। अब ये जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे हम इंडियंस को है ना, अब ये ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहे थे, बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ना, इसलिए। तो पहला प्लेस है मेरठ और उसके बाद नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। Indian soldiers overthrew their superior and marched towards Delhi to crown Bahadur Shah Jafar, the last Mughal emperor, as their king. So ये जो इंडियन सोल्जर्स है ना, ये जो ब्रिटिश आर्मी में थे है ना, इन लोग ने भी अपना काम छोड़ दिया और सब लोग दिल्ली चलने लगे। और बहादुर शाह जाफर है जो लास्ट मुगल एम्परर है ना, उसे अपना किंग बनाने के लिए चलने लगे। और ये जो रिवॉल्ट 1857 है ना, ये जो मेरठ में स्टार्ट हुआ था, सून इट वाज ज्वाइन बाय द फार्मर्स है ना, क्योंकि फार्मर्स को बहुत एक्सप्लोर किए जाते थे है ना, फार्मर्स एंड क्राफ्ट पर्सन भी एंड अदर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी है ना, जो मेल हो या फीमेल हो, छोटे बूढ़े जो भी हो, सब लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भाग लेने लगे। और ये जो इंडियन सोल्जर्स है वो अपना वो पोस्ट है आर्मी में है ना, वो सब छोड़ के चलने लगे, दिल्ली चलने लगे और बहादुर शाह जाफर को एज अ किंग मानने के ये सब चलने लगे। और जैसे कि और इंडियन रूलर्स है ना, इंडियन रूलर्स जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी की रानी, जैसे हम लोग झांसी की रानी भी बोलते हैं है ना। आप सब लोग झांसी की रानी के विषय में तो आप लोग ने सुना ही होगा है ना, झांसी की रानी। नाना साहेब तांत्या टोपी एंड कुंवर सिंह जॉइन द रिबेल है ना, ये सब भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भाग लेने लगे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब, तांत्या टोपी एंड कुंवर सिंह है ना, तांत्या टोपी एंड कुंवर सिंह, सब लोग ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भाग ले लिया। और इसमें बहुत बहादुरी से ये सब लड़े है ना, अपने आखिरी दम तक लड़े और लड़ते रहते ये जो रानी लक्ष्मीबाई है वो शहीद हो गए। और उसके बाद नाना साहेब ने कंटिन्यू किया बैटल, ठीक है, कंटिन्यू किया बैटल। और जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है दिस कंटिन्यूड फॉर 2 years। रिवॉल्ट ऑफ 1857 2 साल तक चले, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये हुआ रिवॉल्ट 1857 किस वजह से स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था और एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा सहन सहन नहीं कर पाए ज़्यादातर इंडियंस है ना, इसलिए रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट होने लगे। एंड मर्चेंट्स जो भी है सब लोग ने भाग लिया, तो रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हो गए, सब लोग बहादुरी से लड़े है ना। पर इसका रिजल्ट क्या हुआ वो अब हम देखेंगे। म्यूटिनी वॉज फेल, पर क्या हुआ, रिवॉल्ट 1857 वो फेल्ड हो गए, क्योंकि
क्योंकि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये क्यों फेल्ड हुआ, इंडियंस क्यों हार गए और ब्रिटिशर्स क्यों जीत गए, क्योंकि इसका मेन वजह था जो इंडियंस है दे लैक्ड प्रॉपर लीडरशिप एंड प्लानिंग। ये जो प्रॉपर लीडरशिप होना चाहिए है ना, और जो प्लानिंग होना चाहिए, इस तरह से हमें रिवोल्ट करना चाहिए, ये नहीं था हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। और ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेन था है ना, और उसके बाद बहुत सुपीरियर वेपन्स भी था, ठीक है, बहुत एडवांस वेपन्स था, क्योंकि इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था है ना, और बहुत एडवांस वेपन पाए जाते हैं इंग्लैंड में, वेयरएज इंडिया में ऐसा नहीं था। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज बोws एंड एरोज है ना, and they also use sword, whereas compared to that of the Britishers used to bring that advanced weapons from the country है ना, और proper leadership और ये जो planning और ये जो weapons अच्छा ना होने की वजह से रिवॉल्ट 1857 हम इंडिया लोग हार गए, ठीक है। Also the Indian rulers helped the Britishers, और some of the Indian rulers जो थे है ना as a whole, क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट किया था ब्रिटिशर्स ने है ना, और थोड़ा थोड़ा जो इंडियन रूलर्स था वो भी ब्रिटिशर्स के साइड में था, ठीक है, ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे, और इसकी वजह से बाद में जाके ये जो बहादुर शाह जाफर was arrested and exiled to Burma। तो ये जो थोड़ा छोटा most of the people, some of the people, only few of the people were supporters of the Britishers, और इसकी वजह से ये जो बहादुर शाह जाफर है उससे अरेस्ट कर दिया, और and after that he was exiled to Burma where he breathed his last, ठीक है, वहाँ पे जाके बहादुर शाह जाफर का भी देहांत हो गया, और his two sons were killed, और बहादुर शाह जाफर का जो 2 sons थे वो लोग भी मारे गए, ठीक है, और इसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है बाबर ने सेटअप किया था है ना, वो इस तरह से मुगल एम्पायर भी डिक्लाइन होके चला गया आफ्टर दी डेथ ऑफ द 2 sons ऑफ द बहादुर शाह जाफर। इसी वजह और इसी कारण से देयर वाज डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। पर ये जो हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स तो विक्ट्री हो गया है ना, विक्टोरियस हो गया, फिर भी The revolt of 1857 was the turning point in the Indian history। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि the rule of the East India ended and India came under the direct control of the British Crown, ठीक है, under the British Crown। क्योंकि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिक्लाइन हो गया है, एंड हो गया, और इसके बाद ठीक है, and after revolt the Indian realized that if the whole of the India have united the British would have never succeeded। और इंडियंस ने रियलाइज भी कर लिया अगर हम सब लोग यूनाइटेड होते तो ब्रिटिशर्स हम मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर स्ट्रिक्ट सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स है ना, चापलूसी करते थे ब्रिटिशर्स का, इसने ये किया उसने ये किया है ना, क्योंकि ब्राइब देते थे ब्रिटिशर्स है ना, पैसे देते थे, ब्राइब देते थे ब्रिटिशर्स, ब्राइब है ना, और इस वजह से यूनिटी नहीं था। बाद में जाके रियलाइज भी किया अगर पर ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है यही तो है शुरुआत इंडियन इंडिपेंडेंस का, इसलिए तो रिवॉल्ट 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हो गया है ना, और धीरे धीरे बाद में जाके हमने कब इंडिपेंडेंस गेन किया 1947 में, ठीक है। सो दिस आर रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो हम कितनी बहादुरी से लड़े यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, झांसी की रानी और जो भी रूलर्स है सब लोग,
है ना, किस तरह से ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करने लगे, है ना, धीरे धीरे फार्मर्स को, वीवर्स को, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमें मिल एंड फैक्ट्रीज भी बनाना नहीं देते थे ब्रिटिशर्स, है ना, इस तरह से एक्सप्लॉइट करते गए थे। लास्ट में जाके रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। और ये जो 1857 में जब इंडिया हार गए, पर हम ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो इंडियन रूलर्स है वो कैसे बहादुरी से लड़े हमारे देश के लिए, वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो हमें ज़रूर देखना चाहिए किस तरह से बहादुरी से हमारे जो इंडियन का रूलर्स है ना, वो कितनी बहादुरी से लड़े हमारे देश के लिए। सो हियर इन दिस इमेज यू कैन सी द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बहादुरी से इंडियन सोल्जर्स जो है वो बहादुरी से लड़े थे, है ना। सो नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857. So here we come to the end of this topic. So next class we will do the exercises and like the magic columns, fill in the blanks, question answer and all. Okay students, so thank you. Okay then, thank you students.